today now for 15-20 minutes, we are having today with us one of our selected candidates, one of our in fact, one of my favorites, I would say. He's Arjun Singh, and he was one of our students in Online 16, and he did his online training from here with us. And after that, after 2 days, he reported to Kapurthala, and on 14th February, I received a call, and the thing what he told me on the call was, "Sir, मैंने AMAS का झंडा गाड़ दिया." That was the words, Arjun. I remember you telling me that, कि sir मैंने झंडा गाड़ दिया AMAS का, right? So I felt very proud of this young boy. He's a very sincere person, simple from his heart. Hard work, I think, has been his forte, and it was by sheer hard work that he has cracked such a difficult SSB, which is for anybody. It's such a difficult task to do, right? So without wasting any more time, I would like to go over to Arjun now, who is yet to come to receive his tie. With all successful candidates to get a tie from AMAS, they come back to us, they speak to our students. But surely, since you are in NCR, Delhi and Noida, will wait for you one day, whenever you have time, to come and take that tie. And today in the session, I would like Arjun to talk to our students like this. You are sitting 1 month back here in the class, and just talk to them. How did you prepare? First, you tell us, how did you prepare? Apart from the online classes, what you learned in the online classes, what time you spent after that, what all hard work did you do? And then we will come to what was your SSB experience. So two facets of our interaction today. So firstly, let's go over to how did you prepare? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So pleasure, sir. It's to be here. So basically, according to my, as I talk about my preparations, so first of all, I was to wake up around 5 in the morning. सर जैसा आपने मतलब कहा था कि एसएसबी की आदत डाल लो, वहाँ 5 बजे डंडा मार के उठा देंगे. सर बेसिकली आई यूज्ड टू कीप दैट हैबिट. आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 5, देन टेक माय ब्रेकफास्ट और सम स्नैक्स नॉर्मल एंड यूज्ड टू गो फॉर वर्कआउट सर. जो कि आपने कहा फिजिकल एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है. सब कुछ अलग नहीं किया था, बस जो आपके थे पॉइंट्स वो डायरी में नोट थे बस, और वही हैबिट दिमाग में चलाना था कि यही था सर. फिर सर उसका यूजुअली ब्रेकफास्ट था, देन सर ऑनलाइन क्लासेस थी एमएस की. सर देन इट यूज्ड टू गो अराउंड टिल 4 and 5. वो रिकॉर्ड था सर, मतलब चलती थी, लंबी चलती थी एज यूजुअल, जितनी होती हैं उससे लंबी थी. सर देन आफ्टर दैट रिवीजन एंड सम होमवर्क्स अराउंड फ्रॉम 1 to 2 hours सर. सर उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा वर्कआउट था शाम के टाइम. देन सर प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दैट यूज्ड टू से टेक नोट्स, गूगल करो, लेक्चरेट के टॉपिक्स जैसे सर आपने उनको पढ़ो, उनको लिखो, उनके बारे में पॉइंट्स बनाओ, फिर पॉइंट बना के आपको शेयर करो. सर जो डाउट आते थे वो आपसे पूछते थे सर. फिर ऐसी प्रिपरेशन चलती थी. एंड आई यूज्ड टू स्लीप आफ्टर 12:30 सर, 12:30 to 1. सो बेसिकली माय स्लीप वाज अराउंड 4 to 5 hours. एंड सर इट वाज 2 times वर्कआउट इन अ डे एंड ऑल ऑफ द अदर प्रिपरेशन. सर पार्ट्स में डिवाइडेड था बेसिकली कि मतलब वीक में 2 to 3 days मेरे को मतलब एसआरटी को देना है, 2 to 3 days मेरे को आईओ को देना है सर. मतलब ऐसे इसमें टाइम डिवाइडेड था. तो बेसिकली आई यूज्ड टू देख, और सर उसके बाद मैं खुद मतलब टाइम स्टॉप वॉच लगाता था मोबाइल में सर, चेक करता था टाइम की, टाइम में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. फिर सर आपकी जो टिप्स मिलती थी बेसिकली वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल हेल्प करती हैं सर. उनको सर माइंड में रख के लिखना, फिर ऐसे प्रिपेयर करना, आगे चलना. और सर फर्स्ट टाइम था तो आइडिया उतना नहीं था, लेकिन सर जैसे कि आपने मतलब बताया सिर्फ उसको दिमाग में रखा था. बाकी सर इट वाज इजी सर, मतलब प्रैक्टिस करी थी तो अपने कॉन्फिडेंस था सर आपकी प्रैक्टिस पर टीचिंग पे. सर इट वाज इजी बेसिकली. Right. So, Arjun, with all this preparation you did for about, let's say, maybe last 1 month or so, or maybe more than that, 2 months. Yes, sir. When you reached there, what was their first reaction? How was the stage 1? And thereafter, Yes. how did you tackle various stages of SSB? Yes. So basically, stage 1 था तो it was around reporting of 181 students. सर बेसिकली डिवाइड कर दिया था ग्रुप में. तो सर पूरा प्रोसेस सर वैसे चला था जैसे आपने मतलब बताया था. इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम कि मतलब OAR 1 होगा, इट विल बी OAR 2, यस यस नो नो, जो आपने ट्रिक्स दिए थे कि मतलब कुछ क्वेश्चंस छूट रहे हैं तो बेसिकली बी कर दो, सी कर दो, सो वो भी अप्लाई किया था सर. देन इट वाज पिक्चर पीपीटी सर, इट वाज सेम, मतलब 3 कैरेक्टर. यू सेड दैट पीपीटी विल हैव ओनली कैरेक्टर्स ऑफ 3 to 4 सर. वो चीज माइंड में रखी थी. फिर चला सर. ग्रुप भी मेरा उतना फिश मार्केट नहीं बना था सर ग्रुप में, बेसिकली बिकॉज इट वाज फ्रेशर्स ग्रुप. तो सर 3-4 था, बट मेरा नरेशन काफी अच्छा था. नरेशन के बाद सर ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद उसमें ग्रुप डिस्कशन दिया जिसमें सर ग्रुप मेरे से काफी डिफर कर रहा था. मतलब मेरी स्टोरी और ग्रुप की स्टोरी काफी डिफर थी, लेकिन सर वही था कि ग्रुप के साथ जाना है तो उसको चीज को फॉलो किया सर. एंड इट वाज सिंपल सर, स्क्रीन हो गया था सब. फिर बेसिकली कितनी बार आप जो नॉर्मल सिंपल पार्ट in the discussion part, how many times did you participate in the discussion? सर? इट वाज 4 to 5 सर.
as you have 4 to told 5 us times. to only participate 4 to 5 times, not Yeah. more than that. सर उतना है सर। बेसिकली कुछ अलग नहीं किया था, जो आपने कहा था सर वो उसको इस माइंड में रखा था कि आपने पीपीटी के टाइम ये बोला था, तो उसको माइंड में रखा, वो चीज अप्लाई कर दी, एंड दैट सर वो टास्क खत्म, तो फिर आगे था सर। ओके, सो उसके नेक्स्ट डे साइक टेस्ट हुआ होगा, वो कैसा रहा साइक टेस्ट, कितनी पिक्चर आपको सर साइक टेस्ट, यस सर साइक टेस्ट वाज गुड सर, मतलब स्टोरीज तो मैं लिख पा रहा था आसानी से, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो उसके बाद वेट आया था, वेट कंप्लीशन कंपलसरी था आपने बताया, तो सर मेरा अराउंड 4 to 5 वेट्स छूट गए थे ओके जो था। लेकिन सर जो आपकी जो वो ट्रिक दी हुई थी छोटी सी, कि मतलब एसआरटी ब्रीफिंग के टाइम कंप्लीट करना है, सर वो मैंने ट्राई किया था सर, वो हुआ था, तो वहां मैंने कर दिया था। एंड सर एसआरटी आई हैव डन अराउंड 45 सर, 40 to 45 एसआरटी कंप्लीट करी थी। हाँ सर, so it was sir basically not very bad or not very good, it was intermediate performance in psych sir I think। ओके but सर जितना था कि सोसाइटी को कंट्रीब्यूट आपकी वो रिकॉग्नाइजेशन थी सारी, वो माइंड में थी sir। ओके फाइन, एंड हाउ Basically, अबाउट ऐसे ही। साइक हो गया आपका, यू कुड डू, Yes, ओके देन हाउ वाज द इंटरव्यू? सर इंटरव्यू वाज गुड, बट आई मिस्ड कपल ऑफ ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस सर। उन्होंने ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे थे, तो When उनके सर you मैं थोड़े बहुत spoke to आंसर्स। me, Arjun, when you spoke to me, you were asked a lot of questions, right? I was surprised to find that you were asked so many GK questions and geography questions. Could you remember some of them? Could you share some of them? Yes, sir. Yeah, sir. It was, some of them was the Suez Canal, Panama Canal, and he was Yeah. asking about the, yes, sir, deserts. The basically deserts, and so he was also asking about the questions of the CDS, geography question about CDS. For what Okay. is the reason of the fame of the Porbandar, and what the famous like Surat is famous for many things, but he was basically concentrating on one thing, which was main. Sir, so these were the questions why the cities of India are famous for particular cities, and sir deserts were there, and sir canals, and sir river lengths, and the rivers covering in the area, and sir my district geographical questions like the latitude and longitude of my district. Imagine, And such a difficult question, right? yes sir, and sir the rivers of my district that are flowing. Right. So basically they were geographical questions, and sir asking very rapidly. It was a like in 1 minute he was asking around 8 to 10 questions very fast, sir. Okay. Yes sir. Right. So how was your GTO ground task? Sir, I will rate my GTO at the top, sir. So Sorry? it was, yes sir. So Okay. I will rate my GTO on the top, sir. All of the Top, three, I will okay. rate my GTO on the top. Yes, sir. So it was very good, sir. I can say that there was not even a single loophole in my GTO, sir. Not even a Yes. single one. Except that, sir, I was unable to complete my GP, the conclusion part. Last Right. around, yes, sir, 1 to 2 lines. Except that there was no loophole in my GTO, sir. I was given a command task, sir, which was very, I have told you, which was very hard. But basically, there was helping materials, sir, jo the, basically they were rod and hollow cylindrical pipe. But sir, I was able to do that because you have taught us 3 things: fulcrum, load, effort. So those 3 were in my mind, and so I applied that. Basically, the work was same, sir. So I was also done that 3 or 4 times. And so you also told that GT will give you hint. Hint 1, level 1, level 2, level 3, level 4. So sir, when he was giving me hints, yes, I was recognizing that he was giving me hint. There is no loss of point. I will take them. I have to listen carefully. And sir, the same thing that happened with the command task. Okay. Yes, sir. I was briefing in my given time to my ordinates, subordinates, and I've done my command task also well, sir. And the PGT was also grouped to be in the first 3 to pick up plank, bully, or rope, any of the helping material, and to just go and give a provide. Yes, sir. And sir, lecturate was also good, sir. Good, sir. The topics were basically the one which I practiced here, sir. Nothing out of that. Yes, sir. All of them were in my card and other students' card also, which are in a group or other groups. So all the topics were the same, which we are teaching here. All of this, sir. The journal topics. And sir, the lecturate was also good. I stopped. I think, sir, I didn't stop anywhere, sir, in between. Very nice. Very nice. Yes, sir. It was also the same. And sir, I will talk about GP and sir, group discussion. So group discussion was also good. Some of them, sir, as you told, was becoming aggressive. ऐसा हाथ मारना, पैर मारना, shouting, one-on-one conversation भी हो रही थी, सर. तो मतलब पूरा मेरे को हाँ समझ में आ रहा था, ऐसा फ्रेशर था कि हाँ सर जो बता रहे थे मतलब बहुत बेसिक चीज है, नॉर्मल है, हो रही है, मैं अपने आगे देख रहा हूँ, सर. मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं रजिस्ट नहीं कर पा रहा था कि बताना कि मतलब गलत हो रहा है या गलत चल रहा है. तो मेरे को आपने जैसे सर गाइड किया था, पता चल रहा था कि हाँ सामने पूरा गलत कर रहे हैं बच्चे. मूवी चल रही थी एक तरह से आपके सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए पर ये कर रहे हैं. यस सर, जितना जितना आपने नेगेटिव बताया था सर, वो सारा मैं अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था. मेरे को समझ में आ रहा था कि हाँ मतलब बच्चे बेसिकली ऐसे मिस्टेक करते हैं. वही था सर, आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बताया था, टू फॉलो अ पाथ.
सर मेरे से बहुत बच्चे ऐसे आए थे जो मतलब देवर नेशनल लेवल पे, जो फिजिकली बहुत फिट थे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कमांड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो थे वो 9 कर पाए, कोई 10 कर पाया। सर बेसिकली क्योंकि उनका कोई पैटर्न नहीं था, बट यू हैव टॉट अस कि पहले आउटर सर्कल करना है, फिर इनर सर्कल करना है। सर वही पैटर्न था सर, थोड़ा स्मार्ट वर्क आपने सिखाया था, थोड़ी आपकी ट्रिक्स थी सर, वही फॉलो किया तो बेसिकली बहुत इजी हो गया था सर। फर्स्ट टाइम भी मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से भी काफी स्मूथली गया था। और सर वही आपने बोला था कि अगर कोई टास्क बिगड़ता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे आना नहीं चाहिए। वो तो सर मेरे हिसाब से की फैक्टर था सर जो आपने बताया था, तो वो चीज मैंने सर काफी अच्छे से फॉलो करी थी कि वो So चीज बिगड़े conference तो कैसी थी? Arjun, how was the conference? Short and crisp, or you had some questions they asked you? sir basically it was some SRTs they asked and a few questions also. Okay. Sir first discussion sir, मैं बैठा तो conference के बाद, so they discussed around 20-25 minutes about me, and they said they call me and they first of all they asked me the usual, my name, what's the meaning of your name. सर तो मीनिंग ऑफ द नेम बताया, एंड सर फिर उन्होंने मेरे PIQ था सर, और प्रेसिडेंट थे बोर्ड के उनके पास। सर ये आस्क्ड मी माय क्वेश्चंस SRT अबाउट माय PIQ, लाइक तुम क्रिकेट टीम हो, फॉरेस्ट में जा रहे हो, एक बस में बैठे हो, तुम 10 लोग जा रहे हो, तुम्हारी बस वॉबल करने लगी, तो अचानक से तुम्हारा ड्राइवर उतरा, उसने मतलब लाइट वाइट टॉर्च टायर पे मार के देखी, एंड देयर वर 8 नट्स इन अ टायर एंड 6 वर आउट, और ड्राइवर ने बोला कि तुम जा नहीं सकते हो, 2 ही नट हैं, तुम कैसे पहुंचोगे। तो सर बेसिकली पहले तो सर थोड़ा मतलब जो बेसिक SRT में आता था सर वो क्लिक किया कि सर आई विल टेक नट्स फ्रॉम द टूल बॉक्स, स्टेफनी यूज करके टायर रिप्लेस करूंगा नट्स। तो सर ही यूज्ड टू से दैट कि नहीं, अब तुम्हारे पास ना नट्स है, ना टूल बॉक्स है, ना टायर है, सर क्या करोगे। सर बेसिकली वही फिर 2 मिनट काम हुआ, डीप ब्रेथ ली सर, फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैं बाकी टायर से एक एक नट निकाल लूंगा, निकाल दूंगा। वेरी गुड। एक एक नट हाँ सर, एक एक नट निकाल लूंगा, तो बेसिकली मेरे में 5 हो जाएंगे, बाकी में 6 हो जाएंगे। तो वो था। जैसे फिर उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा, बेसिकली मेरे से पूछा था कि तुम कौन सी कोड ज्वाइन करना चाहते हो। राइट। एक उन्होंने मेरे से पूछा था, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जीके का था सर, कि कौन सी कोड ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने कहा सिग्नल ऑफ कोड सर। तो सर उन्होंने भी उसका एक क्वेश्चन बना दिया था कि मान लो तुम्हें एक छोटे से एरिया में तुम्हारी वॉर टाइप चल रही है, और वहां पे तुमको दुश्मन का कम्युनिकेशन सिग्नल ब्रेक करना है, तो तुम कैसे करोगे। और उन्होंने कहा था कि सर तुम्हारे पास कोई मतलब आर्टिलरी या You are electronics engineer, right? Communication नो सर, engineer. कंप्यूटर साइंस सर। You are a computer science engineer. Okay. यस सर। सर उन्होंने यही बोला कि तुम्हारे पास कोई वेपनरी ताकत नहीं है, ना इन्फेंट्री ना आर्टिलरी, तो हाउ विल यू ब्रेक द कम्युनिकेशन। Okay. सो बेसिक सर वही था सर, जो मूवीज में देखते कि इलेक्ट्रॉनिक पल्स छोड़ दी तो कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था सर। Right. तो वही उनको बताया। यस सर। फिर उन्होंने एक और SRT पूछी थी कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, एंड उसके बाद शायद मेरे को GTO सर ने सबसे ज्यादा मार्क्स देते, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे GTO सर तुम्हारे पास आए हेल्प करने के लिए। हाँ मैं समझ गया था, वहाँ था। तो उन्होंने बोला GTO सर आए, उन्होंने बोला अर्जुन मैं तुमको एक्स्ट्रा आधा घंटा देता हूँ, कहीं से मतलब डॉक्यूमेंट्स अरेंज कराओ। और उन्होंने बोला कि वर्ल्ड में तुम्हारी सिस्टर या कोई भी ऐसा नहीं है तुमको 1 घंटे से पहले डॉक्यूमेंट ला के दे दे, तो हाउ विल यू डू इट। सर ऐसा था। तो सर बेसिकली ये भी टेक्निकली था, तो मैंने बोला सर आई विल यूज डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। Yes. तो सर ही वाज ओके। फिर सर उसके बाद वही आया था, वाज द फूड कैसा था, and Okay. yeah, any suggestions। Overall, it So was a good basically experience. Yeah. yes sir, बेसिकली सम अप्स एंड डाउन्स थे सर, पर ठीक है सर, वो सोचा नहीं बाद में। Good. So now we'll have 5 minutes. Anybody wants to ask anything to Arjun? Anything in your mind? If Arjun, you want to ask anything to him? Anybody? We'll have 2-3 questions. Anybody wants to ask anything? Hello sir, I just want to have any questions. Yes. हेलो सर, मत बोलो मैं स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, नॉर्मल। Okay. I just want to know from you that when you are telling to the interview IO को जब आप answering कर रहे थे regarding your education background, what Yes, was sir. the rapid question fired by the IO? सर बेसिकली जो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था, उन्होंने सबका फॉरमोस्ट या सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन तो ये रहता है कि तुम्हारा 12th में बैकड्रॉप क्या होता है। Okay. सब हाँ सर, तो मेरा तो बेसिकली यही था कि सर जो मैंने बताया था कि सर जो था कि इतना ध्यान नहीं दिया था, खेलने लगा था, ये था वो था सर। तो एजुकेशन बैकग्राउंड में उन्होंने सर बेसिकली जो रैपिड क्वेश्चंस पूछेंगे वो नॉर्मल होंगे, जो डे टू डे लाइफ में एक नॉर्मल पर्सन को पता होने चाहिए। So what जैसे is सर अगर आप Arjun, what is asking is, did he ask you as per the CIQ or he shifted the CIQ? सर बेसिकली शिफ्टेड द CIQ सर। सर पहले उन्होंने एजुकेशन पूछा, फिर उनके बाद सर उन्होंने एक प्लेट रखा था टेबल पे। Okay. सर उस प्लेट्स में सर पेपर क्लिप था, फाइल क्लिप था, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल एंड सर ऐसी 2-3 चीजें थी।
Okay. सर उन्होंने मेरे को कहा कि पिक एनी वन ऑफ थिंग्स, सर कोई भी इसमें से उठा लो और मेरे को बताओ 5-10 सेकंड में इनके 5 या 6 कन्वेंशन अनकन्वेंशनल यूज कोई भी सर। Okay. हाँ सर, उन्होंने एक उठाया, बोला कोई भी इसमें से बता दो। Okay. हाँ सर, मैंने सर बेसिकली वो लिया था, फाइल क्लिप लिया था, उसमें से मैंने बता दिया सर कि एक तो फाइल पेपर के लिए आ सकता है और फिर से अगर कुछ फट जाए तो आ सकता है उसको चिपकाने के लिए। So बेसिकली हुक में लगा के टांग। ये थोड़ा सा हाँ एक सर, बेसिकली ये था। हाँ Okay. सर, बेसिकली ये। Is anybody else wants to ask anything to us? Sir, how was Step your number 24. Yeah, 24. Sir, my question is regarding to preparation. Yeah, please ask. Arjun sir, actually, when we prepare, then sometimes we feel like tired and something. Then उस टाइम पे क्या करते थे? हाँ यस सर, ये होता है सर। मैं भी मतलब पढ़ता था ना, 4 घंटे की नींद मिलती थी मेरे को भी सर, नींद आती थी, ऐसे लगता था कि यार अब नहीं हो पा रहा है, थक रहा हूँ, जो एक्सरसाइज करके पैर भी माइंड। सर जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आप थक रहे हो, कुछ कर रहे हो, सर अपना आंख बंद करना 2 मिनट और अपने आप को इमेजिन करना उस प्लेस में जहाँ पहुंचना चाह रहे हो सर। मैंने ये किया सर, बेसिकली जब मैं थक जाता था मैं अपनी आंख बंद करता था, या मैं अपने आप को सर एकदम यूनिफॉर्म में इमेजिन करता था, गन पकड़े खड़ा हुआ एकदम आराम से, स्टार्स हैं शोल्डर पे, पासिंग आउट परेड इमेजिन करने लगता था सर, अपने पेरेंट्स का फेस एकदम। सर बेसिकली वो हो जाता है, वो चली जाती है, टायर्डनेस चली जाती है, आपको लगता है अभी और प्रिपरेशन चाहिए, स्टार्ट कर दो, इसको करना कर। सर मेरे साथ भी होता था, मैं भी थक जाता था, लेकिन इमेजिनेशन करने लगता था उस चीजों की, सर अपने आप से अंदर से एनर्जी आ जाती थी कि हाँ करना है, ये चलना है। Yeah, next question. Good answer. Sir, I wanted to know what about the conversation that GTO and you had in means before command tasks. He's What was asking the- about the small talk. What Yes, is sir. asking it? बेसिकली सर ने बताया होगा वही सेम चीज रहती है। नहीं, अभी इनको बताया नहीं है, अभी वहां तक पहुंचा नहीं है, पहले सुपर रेडी है क्वेश्चन से। ओके सर, बेसिकली नॉर्मल है, इंट्रोडक्शन होगा एक तुम्हारा जो 5 स्टेप्स का, वो तो ऑफ कोर्स सर ने कराया। ऑर्डर में पूछेगा कहाँ करते हो, एंड ही विल आस्क वन मोर थिंग कि तुम अभी क्या करना चाहते हो, और कभी कभी पूछ लेगा कि आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है या क्या करना है, या फिर तुम्हारा कौन सा टास्क अच्छा गया जीटीओ का, कौन सा नहीं गया। मतलब इसमें कुछ प्रिपरेशंस नहीं है, हार्डली नॉर्मल चीजें पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे से पूछा था कौन सा टास्क अच्छा गया, कॉलेज अच्छा कौन सा था, कॉलेज कितना पढ़े, बस नॉर्मल चीजें हैं, उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं जीटीओ के हिसाब से। Thank you, sir. Any more questions? Otherwise we will. Hello, sir. Sir. Just number 26, sir. Harsh. Sir, what were the difficult questions asked to you in interview? इंटरव्यू में बेसिकली डिफिकल्ट तो सर ऐसा कुछ नहीं था, अगर आप CIQ पूरा प्रिपेयर करके जाओगे, डिफिकल्ट नहीं हो सकता सर कुछ भी, क्योंकि पर्सनल पूछेगा, पर्सनल आपको अपना पता होता है सर। और अगर आपसे डिफिकल्ट नहीं होगा, आपसे सोशल इशू, जनरल नॉलेज पूछ लेगा, करंट अफेयर्स पूछ लेगा, वो तो सर यस और नो होगा। डिफिकल्ट का मेरे हिसाब से मुश्किल है उसमें चीजें, पर आप एज्यूम मत करने लगना कि मतलब तुक्के से आंसर बताना, वो मत करना, मगअप करके नहीं। बस करंट अफेयर्स पूछेगा, आता है तो उनको यस कर दो, नहीं तो नो, पर इतना हार्ड कुछ डिफिकल्ट पूछते नहीं, नॉर्मल जो बेसिक चीजें होती है वही पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हार्ड पूछे। पर पर्सनल अच्छे से करके जाना, मतलब उनको ब्लफ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ब्लफ में वो तुरंत से पकड़ लेंगे, आपको फंसा देंगे वहीं पे। Arjun sir, Thank test number 12. Arjun sir, यस सर। first of all, congratulations. I want to know that Thank you, how you prepare for your lecture. How was your preparation on lecture? How you prepare? ओके सर, बेसिकली लेक्चर जब सर देते हैं, टॉपिक्स मिलते हैं, तो टॉपिक्स ले लीजिए और गूगल या विकिपीडिया किसी से भी ना, मतलब ऐसे टॉपिक्स को डिवाइड कर दीजिए। इंट्रोडक्शन में 2-3 पॉइंट्स, एडवांटेजेस में 5-6 पॉइंट, डिसएडवांटेज में 5-6 पॉइंट, अराउंड 10 to 12 पॉइंट्स मैक्सिमम है। फिर उसके बाद उनको लेक्चर बोलने की प्रैक्टिस करिए सर, आप स्टॉप वॉच लगा के, बेसिकली 3.5 मिनट्स तक करिए, तभी आप वहाँ पे 3 मिनट्स का लेक्चर डिलीवर कर पाएंगे सर। बेसिकली 3.5 मिनट्स या 4 मिनट्स तक की प्रैक्टिस करिए, वहाँ बोल लेंगे, उस चीज को हो जाएगा। और सब बेसिकली पॉइंट्स बनाइए, डेटा डायरी बनाएंगे, डेटा डायरी में सर सारे पॉइंट्स लिखिएगा A to Z, जो 10-12 पॉइंट, हर टॉपिक के 10-12 पॉइंट लिखिएगा, उनको सर नरेट करने की कोशिश करना। अगर आपको शाइनेस है किसी, तो फैमिली मेंबर के सामने, मिरर के सामने बोलना, स्टॉप वॉच लगा के बोलना सर। तो 12 पॉइंट उनको लिख लीजिए, उसमें से एडवांटेज डिसएडवांटेज सर ब्रेक कर देना लेक्चरेट को बीच बीच में, कि सर मैंने फर्स्ट 30 सेकंड या 45 सेकंड्स टू इंट्रोडक्शन, एंड आफ्टर दैट 1 मिनट और 1.5 मिनट्स टू एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, एंड लास्ट 15 to 20 सेकंड फॉर द कंक्लूजन। सर बेसिकली ऐसे रन करोगे, आपका 3 मिनट्स निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। Thank you so much, sir. दम दे दिया, एक्स्ट्रा दम आपके साथ बात करके तो और जोश आ गया. थैंक यू। Thank you, sir. We will not have any more questions. It is time for the next session to start. I must thank Arjun for joining us.
He has been a very, very sincere student, because you realized even after his SSB 1 month, he still remembers each and everything what we had told in the class, and he has followed it in letter and spirit. Right. So that's his commitment and dedication. And thank you very much once again, Arjun. I look forward to seeing you high in merit. And Thank you, sir. OTA, and then Yes, sir. passing out parade. Yes, Okay. sure, sir. Sure. Yes, sir. So thank you very much for joining. Thank All you, the sir. best to you. Thank you, sir.